Fine, fine. So, hi Vipulji, and so those who will join later. So, good evening. As we just discussed, like the market is becoming volatile every day, right? After Mm. these weekly expiries, market has become like Nifty has become the another bank Nifty for us. Right, right. जिसमें and the best part is from tomorrow, the Sensex expiry is also shifted to Tuesdays. Tuesday. So Right, right. the ideal situation for any trader is कि हम मंडे ट्यूसडे को सेंसेक्स में ट्रेड करें, वेडनेसडे थर्सडे निफ्टी Mm. में ट्रेड करें, एंड फ्राइडे डिपेंडिंग अपॉन मार्केट सेंटीमेंट वी कैन ट्रेड इन ईदर ऑफ देम, Right. राइट. So what I have observed in this change, right, I will just give you guys a brief on that, how I do it now, because the dynamics has changed and certain things are evolving, and I'm also seeing some new patterns coming up in the market, which is not from the technical perspective, they are more from the data driven perspective. Okay, okay. So what is happening now, I'll share my screen and I'll give you a quick understanding how I'm trading nowadays on the options. And before I share, Mm. जब हम बाइंग करते हैं ना, मतलब बाइंग Mm. जनरली वी यूज टू से लेट्स डू बाय आईटीएम्स, Mm. right, because they have the value. But nowadays, Right. buying ITMs is becoming very, very expensive. Very And the most expensive. important element is the IVs which are there, they are making it further expensive, Right. right? The pattern which I have seen in IV is also quite different. Mm. Let me first share my screen so that you can see it. Let me know once my screen is visible. Yeah, it's visible. Perfect. So what we see, if you see today is a Monday, right? Mm. And since morning, the IV of options was increasing continuously, Mm. Mm. right? The morning opening IV was around somewhere around 16 point something, whereas we closed around 13. So when we saw Okay. this Good. IV, so we waited for initial 5 minutes and we felt no, this IV is not cooling off, which means this is not going to be a decay day for anyone, Mm. right? When I'm not seeing any decay, कि हमको decay नहीं मिलेगा, then why should I be worried about selling today? Right, Correct? right. Then what happens? I've seen that okay, IVs are increasing. I'm not going to lose anything specifically if I buy whatever I want to buy. Then next, Mm. what I Mm. did, we generally do, we go and we check the multi-straddle strangle chart. Okay. So at 9:20, if we see the market was around, this is 1 minute chart. Today is 6. Make it an intraday chart for me. Yes. Around 9:20. So this is the exact 9:19, 9:20 time, right? My Mm. IV was, I have already seen around 16, 17 range. The price was, Nifty was around 24,000. So what I have Mm. done, I have checked one ITM, like 200 points ITM, 1% ITM straddle. Okay. Okay. So if you see, I am having two straddles, one 750, one 200. So I have seen this straddle, what it is doing here, right? Once I have seen, okay, Mm. the Mm. straddle is going up, straddle is not declining further. The premium is not melting Mm. here. Then I went ahead and added one more straddle here, which was 24,000 straddle. Okay. Now I've seen this, okay, this straddle is also not declining. 920, the Right. decline is not there because IV is increasing there. Mm. What my trigger point was when this straddle went above its level, which means the above its VWAP. जब स्टाडल वो ने भी अपने okay. वीवैप को ब्रेक किया,
जिसको मैंने लास्ट हम्म। वीडियो में भी बताया था सेशन में कि हम बाइंग कैसे करते हैं या कैसे कर सकते हैं। राइट। तो 929 मेरे को एक सिग्नल मिल गया कि मार्केट इज गोइंग टू बी डायरेक्शनल। The chances of राइट। market becoming directional are very high because IV was also हम्म। increasing and it is breaking my VWAP, which means it can go either side. Now, which side market will go, we do not know, राइट। right? For that, what I do, I generally go to option chain and I open two charts in parallel. For example, हम्म। in the morning, for me, we were around 2400. So the chart for me was 23,750. ओके। Right? A 50 rupee option chart or 55 rupee option chart, I will open. And on the call side, again, it was, if I remember correctly, it was 250 or 200. So I'll open this chart as well. So you see, this is around 60 rupees item in the morning. हम्म। So I have taken these two option charts I have opened for my morning time. ओके। And I will move them to a 1 minute chart rather than a 20 minutes or 5 minutes chart. ओके। Now, whichever option, so for example, today's day is this, whichever option is trading at which level, I will first try to see how they are behaving, right? हम्म। 920, what is happening in which option, what they are trying to do, because they are far OTM. If OTM option is having that burst, correct? So I can see हम्म। the trend is which way. I can identify some trend and I can make some trades, राइट। राइट। right? When I've seen this, I went to 750 chart. Sorry, the 750 put. I was seeing them हम्म। silent here, हम्म। right? 250 puts, I was seeing some jugglery over there. But हम्म। here, I was seeing one more thing. If you open the Nifty chart here, Nifty 50, this is daily, like we are rejected from 21, 20 हम्म। EMA, right? 20 SMA was here, 20 EMA was here. We have rejected from both the levels. So I was a bit sure that market may fall down. So I will be looking more towards the, because I have identified the trend, which way market can go, correct? हम्म। And I am buying options which are of 50 rupees, which means that I can keep a bigger point SL so that I can remain in trade for the longer time. राइट। अगर मैं 200 पॉइंट का ऑप्शन खरीदूंगा तो मेरे को कुछ भी करूंगा तो मेरे को एसएल 20 रुपए पर तो रखना ही पड़ेगा, राइट। 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 राइट? और वो 20 रुपए का एसएल कितना जल्दी ट्रिगर होगा वो मुझे भी नहीं मालूम है। हाँ, वो इट तो इवन, तुरंत तुरंत करते हैं लोग। वो तो ट्रेड लगा और उधर एसएल गया। राइट। ट्रेड लगा मतलब अगर एसएल जाना है तो इधर एसएल गया, इधर टारगेट आया, मतलब दैट इज राइट। हाउ राइट। दिस हैपेंस। तो हमने क्या करना है, हमने एक बार ट्रेंड का मूड बना लिया कि भाई नीचे का ट्रेंड दिख रहा है, ऊपर इसके ऊपर ही बाइंग करेंगे हम। तो मैंने बराबर। सी को थोड़ा सा प्रिविलेज कम दिया, मैं चला गया पुट साइड पे। पुट साइड पे अब मैंने क्या किया है, मेरे पास में मैंने मार्केट को देख लिया, मैंने स्ट्रैडल को देख लिया। मेरे पास एक ऑप्शन है कि जब मैंने स्ट्रैडल क्रॉस हुआ है मैं यहीं पर बाय कर लूं, हम्म। विच इज 929 और 921, करेक्ट? मैं यहां पर राइट। चाहूं तो 920 पर, एग्जैक्ट 920 है, मैं देखता हूं कि क्या प्राइस था। द प्राइस वॉज 53 रुपीज 20 पैसा क्लोजिंग हुआ, मैंने यहीं पर बाय करता हूं तो हम्म। भी मेरे को चलेगा। बट मैंने ऑप्शन का चार्ट देखा तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे यहां पर बाइंग करना है, बिकॉज वो फॉल्स सिग्नल भी हो सकता है। राइट। बिकॉज दिस मूव कुड बी वेरी फास्ट, बिकॉज यहाँ कोई सिग्निफिकेंट मूव नहीं आया है। देन व्हाट वी डिड, वी जस्ट स्टेप्ड अवे एंड वी केप्ट ऑन वॉचिंग। पहले मैं सेटअप बता देता हूं, यहां पर क्या है, ये 50 ईएमए है और 50 ईएमए हाई लो का नेट बना हुआ है। अगर आपको याद हो ये में शुरू, हाई। यस 50 ईएमए हाई लो। पहले अगर आपको याद हो, मैं आप 5 ईएमए का मैं नेट यूज करता था, मैंने बताया था 5 ईएमए हाई लो की रेंज में मैं ट्रेड करता था। हम्म। अगर 5 ईएमए हाई के ऊपर जाते तो दिस इज एन एडवांस्ड वर्जन ऑफ इट। ओके। कि हमने क्या किया, हम छोटे टेन्योर पे चले गए और मैंने, चीज वही हो गई। अब यहाँ पर 10 ईएमए हो गया 5 मिनट्स का एक तरीके से। ओके। बट वी विल मेक अ क्विक एंट्री हियर एंड क्विक एग्जिट।
क्योंकि कई बार क्या होता है, जितना हम्म वॉलेटाइल होता है, तो अगर हम इसी चार्ट को 5 मिनट में देखेंगे तो क्या होगा हमारे को, लेट्स से यही वाला कैंडल बनाए, कितना बड़ा बन गया, हम इतने टाइम में तो एंट्री नहीं ले पाएंगे। हम्म। भाई 67 से 105, यहां तो टारगेट्स आ जाते हैं हमारे। आप ये बराबर। कैंडल देखिए, 263 से 214 विद इन 5 मिनट्स, कैसे बुक करेंगे हम? हम्म। तो व्हाट वी डिड, आई वी चेंज द थोड़ा सा अप्रोच एंड वी मेड इट एज ए 5 मिनट 1 मिनट कैंडल चार्ट। हमने कहा हमको ओके। ज्यादा वो नहीं करना, बिकॉज हम 5 रुपए का आइटम या 50 रुपए का आइटम खरीद रहे हैं, और वो भी बहुत कंफर्मेशन के बाद में, राइट? राइट राइट। नाउ व्हाट वी हैव डन, अब 929 मेरा उधर स्ट्रैडल में भी स्पर्ट आया, और यहां पर जो 920 का देखिए ये स्पर्ट आया भी था, बट ये स्पर्ट मेरे को जो मेरा 50 ईएमए का हाई है उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया है। नहीं दे पाया है। करेक्ट। और उसके बाद में क्या हुआ, प्राइस नीचे डिक्लाइन करके नीचे चला गया। इवन ये जो हम्म आरएसआई और आरएसआई का डब्ल्यूएमए है, राइट, द मूविंग हम्म एवरेज ऑफ आरएसआई एंड द आरएसआई ऑफ 9, वो भी मुझे ये नहीं बोल रहा है कि मैं अभी ऊपर जाने को तैयार हूं इस पॉइंट पर। हम्म। वो जस्ट क्रॉस हुआ था, मेरे को 2 कैंडल कंफर्मेशन तो चाहिए होगा ना ऊपर जाने के लिए कि ये ऊपर जाएगा। बराबर। नहीं मिला, मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, नीचे गया मार्केट, ऑल राइट। स्टाडल में दिख रहा है कि भाई क्या चल रहा है, स्टाडल भी नीचे चला गया था, स्टाडल मेल्टेड डाउन। करेक्ट। राइट। बट मेल्ट कितना हुआ, फ्रॉम 370 369 का वीवैप से वी मेल्टेड डाउन टू 330। सो जिसने स्टाडल बेचा उसको 30 रुपए मिल गया, वो भी आईटीएम स्टाडल में, बहुत हम्म बड़ी बात है। हम्म फिर क्या हुआ, फिर आपका 929 पर हमारा एक अप मूव आता है, हम्म राइट। वी अगेन वेंट टू 750 पुट। हमने देखा भाई इसमें क्या हुआ है, ये ऊपर गया, हम्म ऊपर गया, ऑल राइट। फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, विच मीन्स कि अब ये मेरे को, मेरा मूविंग एवरेज के ऊपर आरएसआई चल रहा है, दैट मीन्स कि समबडी इज बाइंग इट, ये प्राइस सस्टेन कर रहा है। प्राइस मेरे नेट के हम्म अंदर भी रुक रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि नेट को ब्रेक कर जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने तुरंत एक बाय का ऑर्डर लगा के डाला ब्रोकर पर, अराउंड जो पहला कैंडल था इसके हाई के ऊपर ब्रेक होने पर, हम्म आफ्टर दिस रेड कैंडल मैंने इस पर अपना बाय का ऑर्डर डाल दिया यहां पर। एक ऑर्डर यहां पर पड़ा हुआ है, एक ऑर्डर मेरे लो पर पड़ा हुआ है। अब मान लीजिए मैंने 300 क्वांटिटी यहां पर बाय किया, विच इज एट 60 रुपीज और 61 रुपीज, 61 रुपए, और मैंने 54 रुपए पर अपने 2 ऑर्डर डाल दिए, मेरा 10 रुपए का टोटल एसएल है। ओके। तो 61 और 54 के हिसाब से 57 रुपए मेरी एवरेज कॉस्ट होगी, 47 रुपए पर मैंने सिस्टम में एसएल डाल दिया है कि भाई इसके नीचे चले जाओगे, विच मीन्स कि 46 से इसके नीचे जाओगे, मेरा एसएल है, आई एम नॉट वरीड अबाउट इट। व्हाट हम्म। मार्केट डिड, मार्केट ने यहां से इट वेंट अप टू 106, डबल, सीधा 10, डबल हो गया। करेक्ट, एंड इट हैपेंड राइट। इन 1 2 3 4 मिनट्स, हम्म। करेक्ट। राइट। अब आपने 50 का ऑप्शन लिया है, तो अगर आपने 20-20% के भी टारगेट्स रखे हैं, तो आप 11 रुपए, 22 रुपए, 33 रुपए, कहीं ना कहीं तो आप निकलते जाओगे, हम्म। राइट। आप यहां निकल गए, फिर हो गया आपका एग्जिट। आपने जहां पर ट्रेल करोगे एसएल, आपने एग्जिट कर दिया, नहीं ट्रेल किया, आपने कॉस्ट पर ही एसएल छोड़ दिया कि भाई जितना माल पड़ा है इसके नीचे मेरा एसएल है, हम्म या यहां पर मेरा एसएल है, मैं जहां भी रखना चाहूंगा। हम्म मार्केट नीचे ऊपर गया था, वेल एंड गुड, ये भी नीचे आया, मेरे को सेल का सिग्नल यहां पर मिल गया कि आप यहां पर सेल कर सकते हो, बट मैं 50 रुपए का ऑप्शन सेल करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सेल करना है मेरे को तो मैं करूंगा लगभग लगभग 100 से 150 रुपए का ऑप्शन, राइट। हम्म। तो मुझे दिमाग नहीं लगाना है, मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मेरे नेट के ऊपर आने दो, दोबारा देखेंगे। अगर मैंने इसके नीचे एसएल रखा होता तो मेरा एसएल अभी भी नहीं गया है, हम्म। ठीक है। व्हाट हैपेंड, मार्केट वेंट अप अगेन, और ये आज का दिन ही नहीं, आई विल शो यू 2 more days, सो दैट कि आज तो अनएक्सेप्शनल डे था, हर कोई बुलिश बोल सकता है कि भाई मेरा चल गया। मैंने कहा था डॉट कॉम बन सकते हैं सभी। तो यहां पर क्या किया हम लोगों ने, अब हमको दोबारा से आरएसआई ऊपर चला गया एवरेज के, विच मींस कि आरएसआई इज इंक्रीजिंग, बाइंग इज कमिंग इन, करेक्ट। जैसे ही बराबर। आरएसआई वापस गया, प्राइस यहां सस्टेन कर रहा है, हमने फिर से बाय का ऑर्डर लगा दिया, ओके। करेक्ट। अब यहां क्या हुआ, 73। यहां पर
हम क्या करते हैं, हम लोगों ने से 20%, 20% एंड देन 20% के टारगेट्स रखे हैं, और फिर लास्ट जो ट्रांच होती है उसको हम ट्रेल करते हैं। हर 20 रुपए 15 रुपए राइट। बढ़ने पे 5-10 रुपए बढ़ा लिया ऊपर टारगेट, जिससे कि वो उस बराबर। ट्रांच में हमको ज्यादा पैसा मिल जाए। अब राइट। आज जैसा एक्सेप्शनल डे था, तो 60% तो हमने इधर बुक कर लिया। इसके बाद में जब मार्केट हम्म। ऊपर तक चला गया तो मेरा एसएल नहीं गया अभी तक, ओके। क्योंकि हम एसएल टीएसएल छोटा करते हैं मूव, कि बिकॉज ऑप्शन बाइंग में क्या होता है ना, कि आपको एसएल ट्रिगर करने के लिए आपको स्पेस छोड़ना पड़ेगा। अगर हम स्पेस हम्म। नहीं छोड़ेंगे और हम फटाफट सिस्टम को एसएल दे देंगे, राइट, आप ओके। छोटा अमाउंट छोड़ेंगे तो आईवी डिक्लाइन होगा, तो आपका एसएल चला जाएगा, प्राइस ठहर जाएगा तो आपका एसएल चला जाएगा। तो आपको सिस्टम को प्ले करने के लिए जगह छोड़नी पड़ती है, हम्म। राइट। तो आप क्या करोगे, आप अपना एसएल, फॉर एग्जांपल आपने 70 पर खरीदा है, 60 पर खरीदा, आप 60, जब आपका थर्ड टारगेट आ जाएगा तो आप उसके बाद 5-5 रुपए अपना एसएल बढ़ाना चालू कर दीजिए, क्योंकि आपकी बराबर। ट्रेड तो कॉस्ट फ्री हो चुकी है। बराबर है। तो जितना टाइम आप उस ट्रेड में टिके रहेंगे उतना आपको बेटर है। ओके। फिर सिस्टम ने कई बार आपको जगलरी दिया कि भाई यहां पर एग्जिट दे दिया, नीचे आ गया, एग्जिट हो गए आप, राइट। फिर ऊपर गए, आपने फिर बाइंग किया, बट अब आप 200 रुपए का तो आइटम नहीं खरीदोगे, हम्म। 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 आपको फिर चेंज करना पड़ेगा कि अब मैं दूसरा 50 रुपए का ऑप्शन खरीदने जाऊं, बजाय कि मैं 200 रुपए का आइटम खरीदने, क्योंकि मुझे अपना प्रॉफिट भी सिक्योर करना है। बराबर है। नहीं तो जिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से हम चालू हुए थे कि वो 20 रुपए का एसएल बहुत जल्दी उड़ जाएगा यहाँ पर। हम्म। हम्म। अब आप एक एग्जांपल खुद ही लेके देखिए, अगर मान लीजिए कि हमने यहां पर बाइंग करते हैं, जो ये सिग्नल बनता है, राइट, यहां पर हमने हम्म। बाइंग किया 214 से हम 232 गए, और हम वापस से नीचे आ गए 201, हम्म। राइट। वी वेंट अगेन 239, हमारा पहला टारगेट आ गया, बट नीचे जाके हमने अपना एसएल दे दिया ना, मैं समझ गया। राइट। अब मैं राइट। आपको ये भी नहीं राइट। राइट। बोलता हूं कि आप जब ये क्रॉसओवर हो जाए, आरएसआई वीक होने लगे, तो आप एसएल दे दीजिए, बिकॉज अगर आप ट्रेड से जल्दी निकल जाएंगे तो ये तो जगलरी आरएसआई करेगी। हम्म। आप यहीं पर निकल जाएंगे, आप दोबारा कब बाय करेंगे, बराबर। क्योंकि ये 124 पर खरीदने का मन नहीं करेगा, फिर बाय कैसे कर हम्म। पाएंगे, आप हम्म। ट्रेड में टिकेंगे कैसे। तो इसलिए एग्जिट इससे नहीं करना है, हमें एंट्री के टाइम पर यह ध्यान रखना है कि हमारा आरएसआई ऑफ 9 शुड बी अबव इट्स मूविंग एवरेज ऑफ 21। 21 का मतलब हम्म। एक अच्छा खासा टाइम पीरियड हो जाता है कि भाई उतने के ऊपर चल रहा है, विच मीन सस्टेनेबिलिटी इज गोइंग टू बी देयर। देख राइट। लेना है कि हमारा 50 ईएमए का जो नेट है, हाई मीडियम लो का, हम इसके ऊपर हो, आपका हम्म। एसएल इस मेट के नीचे क्लोजिंग है, या आपका 10 रुपए का एसएल है, विच एवर वे आपको बराबर। रखना है आप रख सकते हैं। 50 रुपए 30 रुपए 40 रुपए का ऑप्शन खरीदिए, कोई जरूरत नहीं है कि आप उसमें बहुत एक्सपेंसिव ऑप्शन खरीदें, क्योंकि उसमें आपको हम्म। ज्यादा देर टिकने का मौका मिलेगा। चांस मिलेगा। राइट। यस। थर्ड थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको आईवी को देखना बहुत जरूरी है कि आईवी इंक्लाइनिंग होना चाहिए। अगर लेट्स से मॉर्निंग में खुला 17 का आईवी था, अब 17 से वो डिक्लाइन होकर के 14 आ गया है, क्या मुझे ऑप्शन हम्म। खरीदना है? नहीं, मैं नहीं खरीदूंगा, क्योंकि आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी वॉलेटिलिटी नाउ, राइट। राइट। राइट, आई एम नॉट। आईवी तो मेन है। आईवी मेन है, मतलब अब आप, लोग विक्स को बोलते हैं, हम आईवी को बोलते हैं, बराबर। राइट। आपने आईवी को देखना है और उसके हिसाब से आपने इसको ट्रेड करना है। अब आज के दिन हम्म। में हम्म। ही, अब जैसे एक दिन और पीछे चलते हैं, उस टाइम भी ये 50 रुपए का ही चल रहा था, ये है 3 तारीख, ठीक हम्म। है। 3 तारीख को हमारे साथ क्या होता, मॉर्निंग में ही खुला 60 रुपए का था, आईवी सुबह अच्छी चल रही थी, बाउंसिंग आईवी थी, राइट। यहां पर हम्म। ये ऊपर गया, मेरे को सिग्नल मिल गया कि इसके ऊपर है, मैं यहां पर बाय करता हूं 57 रुपीज पे। वी वेंट अप टू 73। हम्म। हम्म। मैंने कुछ टारगेट तो आ ही जाएगा, मेरा फर्स्ट या सेकंड टारगेट आएगा, मैं नीचे आया, अगर मैंने 57 पर बाय किया था और मेरा कॉस्ट के, जो मेरा एसएल था 10 रुपए का, वो पड़ा हुआ है, तो मैं 47 अभी भी नहीं गया हूं, मेरा हम्म। एसएल नहीं हुआ यहाँ पर, राइट। बराबर। मैं यहां पर आ गया, मैं क्रॉस पर देखूं तो भाई रिवर्सल आ रहा है, तो मैं ट्रिगर कर सकता हूं अपना एसएल, बट अगर मुझे नहीं करना है तो मैं स्टिल कंटिन्यू कर रहा हूं ट्रेड, मैं मल्टीपल ट्रेड्स नहीं कर रहा हूं। वापस वो हम्म। ऑप्शन हम्म। ऊपर गया, हाँ, बट मैं यहां पर क्या करूंगा, मेरे कॉस्ट के पास आएगा तो मैं एक बाय और कर लूंगा, हम्म। बिकॉज मैंने जो एक बुक कर लिया, मैं उतना TWT करके, ट्रेड विद इन ट्रेड करके, मैं अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करूंगा।
ओके मैंने ओके। इसको किया, फिर वो ऊपर गया तो फिर मैंने अपना एक क्वांटिटी काट दिया, तो मैंने ट्रेड का अपना आधा सेल तो हम्म। निकाल लिया। बराबर। भाई 20% का अगर मैंने एसएल रखा है तो मैंने 20% दो बार बुक कर लिया, तो मेरा ट्रेड का आधा एसएल निकल गया। फिर नीचे आएगा अगर यहां आता है तो मुझे मालूम नहीं। अब वो वहां से चला गया 78, मैंने 57 से बाय किया था, 57 से 78 अगर हम देखते हैं 21 पॉइंट्स होता हम्म। है, विच इज राइट थर्टी राइट। सिक्स परसेंट हमारा 40% का टारगेट नहीं आया। कोई बात नहीं, नीचे हम्म। आया, हमने यहां पर इसको एसएल दे दिया। बराबर है। मुझको कोई चैलेंज नहीं है एसएल देने में। हम्म। मेरे को नहीं देना है, मेरे को लगता है कि नहीं यार ये अब शायद नीचे चला जाएगा, सस्टेन नहीं कर रहा है, मैंने खुद पहले कार्ड बुक कर सकता हूं, दैट इज इमोशन। हम्म। राइट। आप नीचे जाते राइट जाइए, राइट। कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये किया, जगलरी किया, फिर दोबारा मिला। हो सकता है मेरा सिस्टम इसको दो तीन बार हम लोग ट्रेड कर लें मैनुअली। हम्म राइट। हो सकता है कि कभी गलत हो जाए, कभी सही हो जाए। और जब लगता है कि नहीं, कन्विक्शन नहीं आ रहा है, तो आप ट्रेड मत बैठाइए, दैट इज इंडिविजुअल चॉइस। हम्म। और दूसरी चीज, परसों क्या हुआ था, फ्राइडे को, परसों आईवी जब खुली थी तो ऊपर खुली थी, अराउंड 16 के आसपास खुली थी। और 16 हम्म। से फिर आईवी, सॉरी 15, 16, 15 के आसपास खुली थी, फिर 15 से वो 16 के आसपास गई, और फिर 16 से उसने डिक्लाइन करना चालू कर दिया था। तो जब ये वाला टाइम आ ओके जाता है, वो 11 बजे के बाद उसने डिक्लाइन करना चालू कर दिया था आईवी ने। तो इस टाइम पर मैं, ओके। जब डिक्लाइनिंग आईवी है, तो मेरे प्रीमियम ऐड नहीं होंगे। हम्म। मेरा फोकस अब ज्यादा हो जाएगा सेलिंग की तरफ। ओके राइट। ओके। अगर डिक्लाइनिंग आईवी पर भी मुझे लगता है कि नहीं यार मैं ट्रेड कर लूं, तो मेरा एसएल इस नेट के नीचे जैसे ही क्लोज हुआ तुरंत एसएल है, मेरा 10 रुपए का एसएल नहीं है फिर। हम्म। अगर मैंने यहां से बाइंग किया है और यहां पर है, अगर आईवी डिक्लाइनिंग यहां पर नहीं है, तो मैं एसएल नीचे रखूंगा। अगर आईवी डिक्लाइनिंग हो गई तो मैं यहां से निकल जाऊंगा, ओके ओके। कि जो आ रहा है पहले लो, बाद में दोबारा ट्रेड बना लेंगे। चार ट्रेड बनाने में दिक्कत नहीं है, मगर चार ट्रेड में ये नहीं करना कि अपन नीचे जाके एसएल देकर आ रहे हैं। हम्म। राइट। बराबर। हम इस मेथड से अगर बाइंग करते हैं और आईवी अगर इंक्रीजिंग है, तो आपके प्रीमियम में तो वैसे एडिशन हो रहा है हम्म। बिकॉज ऑफ आईवी। और जब प्रीमियम राइट। एडिशन हो रहा है तो और डायरेक्शन मिल जाता है, तो वो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है। हम्म। तो दिस इज हाउ, अगर हम ट्रेड करेंगे 50 रुपए के ऑप्शन पे, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, बजाय कि सिर्फ फ्यूचर को देख करके ट्रेड करना। राइट। क्योंकि आप फ्यूचर को देखते हैं, बट अगर आईवी डिक्लाइनिंग है तो आपका फ्यूचर तो बढ़ेगा, बट प्रीमियम इधर ऐड नहीं होगा। हम्म। आपका प्रीमियम आप लूज कर जाओगे। जितना बराबर। डायरेक्शन में प्राइस बढ़ेगा उतना प्रीमियम मिल्ट हो जाएगा, तो आपको नटशेल आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो हमें कॉम्बिनेशन ऐसा हम्म। बनाना है कि जब बाइंग करते हैं तो हमें आईवी बढ़ती हुई होनी चाहिए। बराबर। और 1 मिनट का चार्ट हमें क्या करता है, हमें एंट्री जल्दी देता है। हम्म। 1 मिनट का चार्ट हमको एंट्री जल्दी देता है, एग्जिट जल्दी देता है। कई बार लोग कहते हैं कि यार 1 मिनट का चार्ट कुछ ज्यादा जल्दी होता है। ठीक है, आप 5 मिनट के चार्ट पे हम्म। कन्वर्ट कर लीजिए। बट जिस तरीके की वॉलेटिलिटी अब हो रखी है, हम्म। राइट, तो आपकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम आज की ही बात करते हैं, इसको क्विकली 5 मिनट के चार्ट पे देखते हैं, हमको यहां सिग्नल नहीं मिला। हमको सिग्नल मिला जो हमने पहला बाइंग 52 या 54 रुपए पर किया था, वो हमको सिग्नल मिलता है जाकर के 70 रुपीज पर। ओ। राइट। अब जब मैं 70 पर किसी चीज को बाय करूंगा, तो मेरा यहां पर 106 तक पहला या दूसरा ही टारगेट आएगा, जहां पर हमने हम्म। 1 मिनट के सिग्नल से हमने क्विक एंट्री कर ली थी। फिर बराबर। प्राइस नीचे आया, हमने दोबारा एंट्री नहीं कर पाई बिकॉज हमारा डिक्लाइनिंग मोड था। आरएसआई मेरा मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा था। दोबारा मैंने हम्म। एंट्री कब किया, जब मेरा प्राइस चला गया 81। वहां पर हम लोगों ने सेकंड एंट्री की थी 70 रुपीज पे। राइट। और फिर यहां से प्राइस आपका सेम मूवमेंट तो सेम हुआ है। हाँ तो सिंपल। राइट। तो इट इज इंडिविजुअल चॉइस, आप कैसे करना चाहते हैं। आप 5 मिनट पे कर सकते हैं, आप 50 ईएमए की जगह आप 20 ईएमए ट्राई कर सकते हैं, जिसको बहुत जल्दी मूवमेंट चाहिए होता है। आप इसको 100 ईएमए में हम्म। भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बट मैंने अभी ये फाइंड किया है कि निफ्टी में ऑप्शंस के चार्ट पे इसको देखना है, निफ्टी पे नहीं देखना है। और जब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आ जाता है, प्राइस सस्टेन करने लगता है, तो वो एक अच्छा मूव मिल जाता है।
ऑप्शंस बाइंग है, इट इज हाईली रिकमेंडेड, जस्ट ट्रेड ओनली विद अ स्मॉल अमाउंट, राइट, नीड नॉट टू ट्रेड विद अ वेरी हाई अमाउंट। और अगर आपकी 50% ट्रेड्स भी करेक्ट बैठ जाती हैं, जहां पर आपके कुछ ट्रेड्स में पूरे टारगेट्स आ जाते हैं, कुछ ट्रेड्स में आपका सेकंड टारगेट आ जाता है, कुछ ट्रेड्स में एसएल भी जाते हैं, तो भी इन हम्म। इन ए नटशेल यू विल बी इन अ गुड प्रॉफिट, बिकॉज आप छोटा आइटम खरीद रहे हो, आपने काफी सारे चेक्स कर लिए हैं, एंड मोस्ट बराबर। इंपॉर्टेंट आपने आईवी का चेक कर लिया है कि आप आईवी देख पा रहे हो, हम्म। राइट। हाँ, वो बेस्ट है, आईवी सबसे बेस्ट है। हाँ, आईवी देख के पता ज्यादा चलता है वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, वो इस सब से। करेक्ट, करेक्ट। अब जैसे कल एक्सपायरी डे है, कल के हम्म दिन तो मतलब आईवी विल गोइंग टू प्ले वेरी वाइटल रोल। इवन आज की डेट में हम्म। भी अगर अपन देखते हैं तो निफ्टी का आईवी 10 पॉइंट्स बढ़ गया है, सेंसेक्स का आईवी हैज हम्म इंक्रीज्ड 11 पॉइंट्स, 11.6 पॉइंट्स। हम्म। और अगर हम लास्ट एटीएम से बात करते हैं तो वो तो 14 पॉइंट ऐड कर लिया है। राइट। सो दैट इज हाउ द आईवी is playing. Let's look राइट राइट। forward to utilize this, श्योर right? श्योर। If you have any queries, chat is there, you can discuss. Even आपको after, अल्गो का क्या हुआ? आप जो बोल रहे थे अल्गो का, वो भी क्या सर हुआ? एल्गो का एक्चुअली क्या था कि जब एक्सपायरीज खत्म हो गए तो बहुत हम्म सारे लोग बोले कि यार हम इतनी सारी मतलब इतना पैसा देंगे और इतनी तो एक्सपायरीज भी नहीं बची हैं। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम्म। लेट्स पुट ऑन होल्ड, हम आपको एवरीडे सेलिंग की स्ट्रेटेजी दे देंगे। हम लोगों ने ओके। अभी क्या किया है, आईवी बेस्ड स्ट्रैडल को बनाया है, जिसमें मतलब आई कैन जस्ट गिव यू, हमारा 20 पॉइंट्स का एसएल है, उससे बड़ा एसएल नहीं है। ओके। और जिस दिन वो ट्रेड आती है, मतलब अभी तक का जो हमारा उसका रिकॉर्ड रहा है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 90 to 95% का हमारा एक्यूरेसी हो गया उसमें। अच्छा। ट्रेड आज जैसे आज का डे था, उसमें एक भी ट्रेड नहीं आई है, जीरो ट्रेड। ओके ओके ओके। हमारा कल का डे था, इवन आई थिंक सो, थर्स सॉरी दिस फ्राइडे, फ्राइडे को सेंसेक्स में हम्म। एक ट्रेड आया था, और निफ्टी में दो ट्रेड आया था। पहला ट्रेड मॉर्निंग में आया था, ओके। जिसमें उसने एसएल दिया था, और दूसरा ट्रेड उसके बाद में आया था, जिसमें उसने जो एसएल जो दिया था उसके बाद में उसके प्लस करके अराउंड कितना, प्लस 5,000 एडिशनल एक, मतलब 4 लॉट में हम काम करते हैं इसमें। तो हम्म सिस्टम से क्या होता है कि हमारे को एसएल को ट्रेल करना आसान हो जाता है। तो व्हाट वी डू, वी सेल लेट्स से 4 लॉट्स, 4 लॉट्स में स्ट्रैडल बनाया। जब फर्स्ट टारगेट आ जाता है कि 20-25 पॉइंट आ गया है, तो पहला टारगेट ट्रिगर कर दिया कि भाई कुछ माल कट जाना चाहिए। तो अब हम्म। हमारे पास 3 लॉट का मल्टीप्लायर में ट्रांच बचा हुआ है। अब फर्स्ट लॉट एसएल आने, टारगेट आने के बाद में हमारा कॉस्ट पर एसएल शिफ्ट हो गया है, तो दैट मीन्स कि ट्रेड इज प्रॉफिटेबल नाउ। हम्म। अब जैसे जैसे प्राइस नीचे आता जाएगा, सिस्टम आपका एसएल शिफ्ट करता रहेगा, ट्रेल करता रहेगा। अच्छा। वो ट्रेल करता रहेगा। मान लीजिए कि हमने लास्ट टारगेट जैसे 300 पॉइंट, 350 पॉइंट का रखा हुआ है, सेंसेक्स हम्म। में 350 पॉइंट है, निफ्टी में 150-200 पॉइंट है। तो वो अगर उतना डिक्लाइन आ जाता है तो अब सिस्टम बुक कर लेता है। अगर बीच में टीएसएल हो हम्म गया, ऊपर गया, तो मैनुअली तो वी आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग, राइट। हम्म अब टीएसएल हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम सिस्टम से ही अपना एरर, मतलब सिस्टम उस टाइम के नियर बाई के सारे स्टैडल्स के रेट रख लेता है, और अगर वापस से हमारी सारी कंडीशन मीट हो जाती है तो वो दोबारा ट्रेड बैठा देता है। अच्छा अच्छा। मतलब ये नहीं होता कि एसएल चला गया तो मैं ट्रेड में दोबारा नहीं एंटर कर पाऊंगा, मेरी ट्रेड वैसे ही चालू हो हम्म। जाएगी। ओके ओके। तो इसलिए मैंने एक्सपायरी वाले को भी होल्ड कर दिया। मैंने कहा इतनी एक्सपायरीज तो मिल नहीं रही है लोगों को कि वो बेनिफिट ले पाए उतना, और सिस्टम का एक्सपेंस है ही, राइट राइट देखिए मतलब सिस्टम का एक्सपेंस कोई मैं आपसे नहीं ले रहा हूँ, वो तो मशीन का एक्सपेंस है जो मैं एडब्ल्यूएस को पे करता हूँ, राइट राइट राइट। राइट। तो इसलिए मैंने वो कहा तो मैंने देने एक, का ही है। हाँ, वो तो देने का ही है। वो तो देना ही पड़ेगा ना। तो इसीलिए मैंने कहा राइट कि राइट उसको होल्ड करके मैंने कहा आपको कुछ ऐसा दे देते हैं जो कि आप रेगुलर यूज कर पाए। इवन जो मैंने अभी आपको आज राइट। बताया है, इसको भी हम एल्गो में डालने वाले हैं, मेरे हिसाब से अगले 2 हफ्ते में ओके। वो भी हम डाल देंगे।
तो वो भी मैं दे दूंगा भाई, हाँ, 50 रुपए की बाइंग वो खुद ही कर देगा। ओके ओके। रादर देन वी आर फोर्स थिंकिंग फ्रॉम आवर साइड, लेट एल्गो डू दैट फॉर मी एज वेल। परफेक्ट। इवन हम लोगों ने सर आईवी यस। आईवी डिक्लाइनिंग होगा या आईवी जो कम ज्यादा होते रहता है ना इंट्राडे में भी, तो उसमें हम लोग किधर चेक कर सकते हैं क्या? एक्सपायरी डे पे समझे सर हमने बाइंग इसका किया और आईवी इसका ड्रॉप हो एक्चुअली गया। मेरे पास सर्विस है, बट वो मैसेजिंग सर्विस है, वो मैं ज्यादा लोगों को नहीं देता हूँ। अगर आपको चाहिए तो इट अच्छा। इज अ स्मॉल अमाउंट पेड सर्विस, 1,000 रुपीज पर मंथ सर्विस है। व्हाट्सएप पर आपके पास मैसेज आ जाएगा, बिकॉज वो भी व्हाट्सएप के एपीआई का चार्जेस है। ओके। अच्छा। वो भी व्हाट्सएप के एपीआई का चार्जेस है। मैं एक ग्रुप बना दूंगा, उस ग्रुप में मैसेज पब्लिश कर दूंगा, क्योंकि 3 ग्रुप तो मैं ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ फॉर माई पर्पज। ओ। ओके। राइट। तो मैं एक ग्रुप आपको दे दूंगा, उस ग्रुप में आपको आ जाएगा भाई कब क्रॉस ओवर हो रहा है, कब डाउन क्रॉस अप और क्रॉस डाउन हो रहा है। ओके। ठीक। तो उससे और अपने सेलिंग करेंगे अभी मैन्युअली, अगर सेलिंग करेंगे तो 20 to 30 पॉइंट्स के एसएल रखना ही है क्या? सर देखिए, 20 पॉइंट से कम का एसएल रखना तो कोई फायदा नहीं होता है, बिकॉज आप जब सेल करते हैं तो कभी भी एक लेग में हम्म। थोड़ा सा भी स्पॉट आएगा तो वो तो 5-7 रुपए का तो प्लस माइनस ऐसे ही दिखने लगता है। हाँ बराबर है। सिस्टम तो एसएल लगा देगा ना। अगर आपका दूसरा हाँ साइड ट्रेड नहीं हुआ है, एक ही साइड ट्रेड हुआ है, तो आपका एसएल लग जाएगा ना। बराबर। हम्म। तो सर बस यही था। अभी इसको आप मतलब मैं वीडियो डेफिनेटली डाल दूंगा, बिकॉज सम पीपल आस्क, इसलिए मैं इस मोड में आ गया हूँ वीडियो वाले में। अच्छा है वो। अदरवाइज